Defending Jawaharlal Nehru University Students' Union, JNUS, President Kanhaiya, the app Monday submitted 2 video clips that purportedly show the real culprits behind the unrest in JNU. According to the app, the 2 clips allegedly show members of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) shouting anti-India slogans. Countering the allegations, the ABVP too approached police Monday with a complaint stating that the videos were morphed in an attempt to defame the organization. Senior app leaders Ashutosh and Dilip Pandey met Special Commissioner, Law and Order, Deepak Misra and demanded action against those seen in the video clips. We are disturbed by the fact that police arrested the JNUS president without any evidence against him. The 2 video clips which we are submitting to you cast a very serious doubt on the role of ABVP in the entire incident, and it must be thoroughly probed. Those seen raising anti-India slogans in these clips must be immediately identified and arrested. The app letter to the police read. One of the videos shows people allegedly shouting Pakistan Zindabad, who app claimed were affiliated to the ABVP. JNU ABVP President Alex Singh, who was present on campus during that protest, told the Indian Express, "There are some ABVP members in the video, and some students who support our cause but are not members." At that point, the ABVP was shouting slogans such as Bharatiya Court Zindabad and Indian Army Zindabad. We did this to counter anti-national slogans being raised at the same time. According to the ABVP, 3 students, Bhaskar Jyoti, Shruti Agnihotri and Aditya Kumar, submitted a written complaint at the Vasant Kunj police station. They stated that the video is morphed and is a clear attempt of defamation. The video should be checked forensically. Real traitors shouting anti-India slogans should be identified. This is a clear attempt of defamation, said Singh. The Delhi police had registered a suo motu for February 9th after students' groups clashed on campus during a protest against Parliament attack convict Afzal Guru's hanging. The next day, East Delhi BJP MP Mashkari wrote to Home Minister Rajnath Singh, HRD Minister Smriti Irani and Police Commissioner B.S. Pasi, seeking action against anti-national and anti-constitutional activities in JNU. The suo motu by Inspector Virender Singh stated, on February 10th, Zee News aired a clipping that shows students shouting Pakistan Zindabad. According to the FIR, after seeing this clip, the inspector requested the channel for a copy of the clip, which was given to the police on February 11th. According to app, the decision to book Kumar on charges of sedition was not based on law. It appears to have been done under pressure from the centre. Police may find it difficult to pass the judicial scrutiny of its questionable move. The app demands a fair investigation. Those who have raised anti-India and pro-Pakistan slogans must be punished in accordance with the law, but police must prove its credibility by not victimizing innocent students and teachers of the JNU, the statement read. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें देखना चाहिए कि देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं और आप लोग आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, मातरम अरे वंदे आजकल जो जेएनयू का मामला चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, हिंदुस्तान हमारे देश के खिलाफ नारे लगाए, और उसके बाद ये जो पूरा एक माहौल तैयार किया गया, पुलिस की कार्रवाई होती है, वहाँ पर भाजपा के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, विद्यार्थी परिषद के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ सवाल है जो हमको समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। एक तो एक वीडियो आया है, इंटरनेट पे एक वीडियो चल रहा है। अब तो लगभग सभी लोग, जो भी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो उस वीडियो को देख चुके हैं अभी तक। और उस वीडियो में ये आ रहा है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, एबीवीपी के लोग
वहां पर भीड़ में घुसकर ऐसे नारे लगाते हैं और बाद में एबीवीपी के साथ प्रदर्शन करने में शामिल हो जाते हैं। अगर ये वीडियो सही है, अगर ऐसा सच में हुआ है कि नारे लगाने वाले एबीवीपी के लोग थे और उसके बाद माहौल को भड़काने की पूरी कोशिश की गई, वो एफआईआर कराने की कोशिश, और इस प्रकार से तो ये पूरे देश में कैसा तनाव का वातावरण, एक दूसरे का दुश्मन बनाने का वातावरण पैदा करने की कोशिश हो रही है। मेरे को तो लगता है अगर साजिश पूर्वक वहां पर वो नारे लगवाए गए इस देश के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में और अफजल गुरु के समर्थन में, तो ये देशद्रोह है। और एक बड़ा सवाल ये भी है, आज कितने दिन हो गए उस प्रदर्शन को हुए, दिल्ली की पुलिस अभी तक 20 ऐसे लोगों को नहीं पकड़ पाई जिन्होंने वहां नारे लगाए थे। कौन थे वो लोग? आखिर पुलिस को इतना समय क्यों लग रहा है? और अगर हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कुछ लोग हमारे देश के खिलाफ नारे लगाते हैं तो वाइस चांसलर अभी तक उन लोगों को रेस्टिगेट क्यों नहीं करते हैं? मेरे को लगता है इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की असफलता है। वो कार्रवाई नहीं कर रहे, राजनीति जरूर कर रहे हैं। अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ कितने बड़े बड़े बयान दिए भाजपा के नेताओं ने, लेकिन ये अफजल गुरु है कौन? आपको पता है, कश्मीर में भाजपा ने जिन लोगों के साथ सरकार बनाई है, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, वो लोग अफजल गुरु को शहीद मानते हैं। अफजल गुरु के कार्यक्रम होते हैं उनकी पार्टी में और कश्मीर में, और भाजपा उन्हीं के साथ अफजल गुरु को शहीद मानने वाले लोगों के साथ बैठकर सरकार बना के बैठी है जम्मू कश्मीर में। भाजपा को यह बताना होगा इस देश को कि भाजपा अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है या शहीद मानती है। अगर आतंकवादी मानती है तो शहीद मानने वाले लोगों के साथ सरकार क्यों बनाई है भाजपा ने? उनके साथ कुर्सी में क्यों बैठी है भाजपा? ऑन अ सीरियस नोट, ये जो राजनीति नई तरह की शुरू की है भाजपा और संघ ने, अगर कोई किसान इनका विरोध करे तो उसको ये नक्सलवादी बोलते हैं, अगर कोई आदिवासी इनका विरोध करे तो उसको ये माओवादी बोलते हैं, अगर कोई युवा खड़ा हो जाए और बोले कि आपकी नीतियां गलत है तो उसको ये बोलते हैं कि ये तो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। दलित अपनी आवाज उठाए तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित करने लग जाते हैं, और अगर वो इनके खिलाफ राजनीति में वोट मांग ले तो उसको पाकिस्तानी साबित कर देते हैं। और इसी प्रकार की राजनीति का ये अगला कदम है जिसमें ये कह रहे हैं कि जेएनयू में जितने भी छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं वो हाफिज सईद से उनका समर्थन है। मेरे को लगता है अपने देश के युवाओं के बारे में थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। इस देश का युवा आप पे सवाल तो उठा सकता है, आंदोलन तो कर सकता है, पर इस देश के युवा गद्दार नहीं है, इस देश के युवा आतंकवादी नहीं है, इस देश के युवा देशभक्त हैं। और इस देश के युवा देशभक्त हैं लेकिन सह रहे हैं आपको इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा, अपने ही देश के बच्चों पे, लड़के लड़कियों पे, छात्रों पे गद्दार होने, राष्ट्रद्रोही होने, देशद्रोही के आरोप लगाने की भाषा। मुझे लगता है ये भाषा नहीं चलेगी, ये देश ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। थोड़ा सोच समझकर जिम्मेदारी पूर्वक बयान दिए जाएं तो हम सबके लिए अच्छा है। और एक बड़ा सवाल, भाजपा आखिर ये कर क्यों रही है? इस देश के युवाओं से भाजपा की दुश्मनी क्या है? हैदराबाद, बनारस, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अब दिल्ली में जेएनयू, ये सब जगह ऐसी दुश्मनी क्या निकल आई है भाजपा की जो हमारे देश के युवाओं को गद्दार बोल रही है, हमारे देश के युवाओं को राष्ट्रद्रोही बोल रही है, देशद्रोही बोल रही है? क्यों कर रही है भाजपा ऐसा? इसके पीछे एक ही कारण नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात का बहुत बड़ा जमीन का घोटाला पकड़ा गया है, आनंदीबेन का। जब मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे तब का घोटाला है। भाजपा वहां से ध्यान हटाना चाहती है। भाजपा चाहती है कि लोग उस घोटाले के बारे में चर्चा ना करें, इन्हीं नारों में उलझ कर रह जाए। आज सेंसेक्स लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पिछले कई सालों में सेंसेक्स इतना नीचे कभी नहीं गिरा जितना नीचे आज सेंसेक्स गिरा हुआ है। भाजपा इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, ध्यान बटाना चाहती है। रुपया आज सबसे नीचे गिर चुका है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया ऐसे लग रहा है जैसे किसी अस्पताल में एडमिट हो, मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। भाजपा इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहती, भाजपा बचना चाहती है इसके बारे में बातचीत करने से। संसद का सत्र आने वाला है बजट का, भाजपा कोई कानून पास नहीं करा पा रही, संसद चलता ही नहीं है। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी ये संसद नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन भाजपा चाहती है कि इसके बारे में इस देश में चर्चा ना हो। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, फैक्ट्रियां, काम धंधे, रोजगार बंद पड़े हुए हैं, इसके बारे में चर्चा ना हो। किसानों की क्या हालत है इसके बारे में चर्चा ना हो। इसीलिए वो ये माहौल खड़ा कर रहे हैं इस देश में। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के लोग इसके लिए समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि भाजपा क्या करना चाहती है। एक बात और, कई लोग आ रहे हैं बड़े चिंतित होकर, परेशान होकर, कहते हैं भाजपा इस देश को तोड़ना चाहती है, हम क्या करें? उनसे ही मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को तोड़ सके ऐसा कोई माइका लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा गंदी राजनीति जरूर कर रही है, फूट डालने की कोशिश कर रही है, ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है।
दिल्ली और बिहार में भी हमने देखा है, और इस देश की जनता सबक सिखाती है। जिसने भी फूट डालने की कोशिश की है उसको इस देश की जनता ने सबक सिखाया है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा, सजग रहना होगा, एकजुट रहना होगा। जय हिंद।